Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel. My dearest class 9th ICSE board students, today we will do the questions of the exercise 7b, which is based on the topic logarithm. In the last video we discussed about the laws of logarithm. There were three laws: product law, power law and quotient law, and I made you understand that there is no law for the product of the logs, there is no law for the division of the logs. Remember, quotient law is on the division of numbers. I mean, when we take a log on the division of number, some of you due to confusion think that this is for division of logs. So quotient law is not for the division of logs. Quotient law is for log on the division of numbers. Remember, division of numbers, then it changes to difference of logs. I mean, when log is taken over division a by b, then it changes to log a minus log b. Some of you think that the formula is for log a divided by log b. No, there is no law for log a divided by log b. So we will do the questions to make us more understandable. So let us do exercise 7b. I start with question number 4. I remember I did 3 questions of this exercise. Today we will do question number 4 of 7b. The first question, I hope you all are knowing that we are doing the questions from the book S. Chance ICSE Mathematics for class 9th. So I write the question 4, first part, which says that prove that log of 7 plus log of 1 upon 7 equals to 0. So I start with left hand side. We have log 7 plus log 1 by 7. You can see this is the sum of the logs, and sum of the logs can be changed to a single log using the converse of product law. I mean, these two logs which are connected with addition symbol can be changed to a single log, but to change this sum to a single log we need to multiply these two numbers. हमको इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और तब जो लॉ हमने यूज किया है उस लॉ को बोलेंगे कन्वर्स ऑफ प्रोडक्ट लॉ. Cancel. So we get log 1, and I have told you log 1 at any base is 0. So this will be 0. Not answer we will write here, we will write here proved. Second part, log 72 equals to 3 times log 2 plus 2 times log 3. So I start with left hand side, log of 72. Look at the terms in the right hand side.
in this right hand side we have the numbers as 3, 2, 2, 3, which are the factors of 72. So we will write 72 as the product of its prime factors. So let us आइए अब 72 को इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट फॉर्म में लिखें. When you divide 72 by 2 you will get 36. 36 divided by 2 18. 18 divided by 2 9. 9 divided by 3 3. 3 divided by 3 1. So we can write this 72 as the product of these prime factors. So 2 cube into 3 square. 72 can be changed to 2 cube multiplied by 3 square. So using the product law, this is product, no? We can change this to sum of logs. So log 2 cube plus log 3 square. Now we can use what? Power law. Which law? Power law. So using the power law we can change this to 3 times log 2 plus 2 times log 3. So we will be writing here, this we have got using product law, and this result we have got using power law. So we wanted to get this result, so we have got, so we will write here right hand side, hence proved. Now third one. What do we have in this? Log 448 equals to 6 times log 2 plus log 7. As I told you, here in this question we will express 448 as the product of its prime factors. So let's do rough work. 448 divided by 2, so we get here 224. It is divisible by 2, so we get here 112. Again divisible by 2, we get 56. Again divisible by 2, we get 28. Again divisible by 2, we get 14. Again divisible by 2, we get 7. Now since 7 is a prime factor, so we get here 7. It means 448 can be expressed as the product of these prime factors. You can see in this product we have 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 times. So we can write 448 as 2 to the power 6 into 7. Using the product law, this single log can be changed to sum of the logs. अब प्रोडक्ट लॉ को यूज करके हम इसको 2 लॉग्स में तोड़ सकते हैं. एक होगा log 2 to the power 6, दूसरा होगा प्लस log 7. अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं पावर लॉ. Using the power law, it can be changed to 6 into log 2 plus log 7, which we wanted, so equals to right hand side, proved. Fourth part. What is the fourth part? Log 4 upon 7 plus
log 33 upon 18 minus log 22 upon 21 equals to 0. So right here left hand side, copy it, log 4 upon 7 plus log 33 upon 18 minus log 22 upon 21. आप देखिए यहाँ आपके पास 3 टर्म्स हैं log के. You have 3 terms of logs. So here we see that addition and their subtraction. I hope you know that if there is a difference of logs, जैसे कि यहाँ पे है दोनों logs का difference है, so that changes to division of the numbers. These two logs will change to a single log, but to make that change इन दोनों numbers का division कराना होगा. तो वी हैव 3 नंबर्स, 3 लॉग्स. तो तीनों लॉग्स को एक सिंगल लॉग में चेंज करेंगे. उसके लिए इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और इससे उस मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करेंगे. सो आई राइट इट. लॉग देखते रहिए 4 upon 7 इंटू ये 33 upon 18 डिवाइडेड बाई 22 upon 21. ठीक. अभी मैंने कहा कि ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे और इससे वो प्रोडक्ट डिवाइड होगा जैसा मैंने यहाँ लिखा. नाउ दिस इज अ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन. अब ये एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है. आई होप आप क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 में कैसे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं जानते हैं. अगर नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, मैं आप सबके लिए यहाँ पे उसको समझा रहा हूँ. डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन इट. चिंता करने की बात नहीं है. मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करके रिड्यूस्ड रिजल्ट लाएं. क्या करना है आपको? ये डिवीजन है, ये सिंबल डिवीजन के लिए है. ये फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन से डिवाइड हो रहा है. तो आपको सबको पता है कि जब फ्रैक्शंस का डिवीजन होता है तो उस डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं और जो डिवाइजर होता है उस डिवाइजर का रेसिप्रोकल लिखते हैं. ये है डिवाइजर. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? लॉग 4 upon 7 मल्टीप्लाइड बाई 33 upon 18 मल्टीप्लाइड बाई. अब इस डिवाइजर का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 21 upon 22. अब इस प्रोडक्ट को आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूं. 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, 11 3 जा 33, 11 2 जा 22, 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4. So what do we get? We get here 1 into 1 into 1, log 1. And I have told you log 1 is 0. Next part, fifth one. What do we have? In the left hand side we have log of cube root of 6 whole 2 upon 9 equals to 1 upon 3 times log 7 minus 2 log 3
ब्रैकेट क्लोज प्लस log 2। चलिए इसको भी करते हैं। क्या करना है, आपकी मर्जी चलेगी। प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन में आप फ्री हो किसी भी साइड से स्टार्ट करने के लिए। आई होप अभी तक सबको पता चल गया होगा कि इस साइड में जो भी लिखा होता है उस चीज़ को हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और इधर वाले को हम राइट हैंड साइड बोलते हैं। और राइट हैंड साइड बोलने और लिखने के बाद जो टर्म्स लिखे होते हैं उसको कॉपी करते हैं। तो मैं इधर से शुरू करता हूं और उसको सिंप्लीफाई करते हुए लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज करते हुए इस फॉर्म में हम लोगों को चेंज करना है। सो लेट्स डू। सो आई स्टार्ट विथ लेफ्ट हैंड साइड। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये सॉर्ड फॉर्म है और इस सॉर्ड फॉर्म को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे भाई? जब सॉर्ड फॉर्म रहता है तो उसमें हम स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, nth रूट कहते हैं। और जितना भी रूट हम बोलते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, थर्ड रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, सेवंथ रूट, उसको उस एक्सपोनेंशियल उस नंबर को जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होता है तो हम लोग बेस को रेज करते हैं। कितना रेज करते हैं? जो नंबर मैंने बोला, सेवंथ रूट बोला तो 1/7 रेज करेंगे। उस बेस का पावर कितना लेंगे? 1/7। जब क्यूब रूट बोलेंगे तो बेस का पावर कितना लेंगे? 1/3। जब फोर्थ रूट बोलेंगे तो बेस का पावर कितना लेंगे? 1/4। तो यहाँ पे क्या है? ये क्यूब रूट का सिंबल है। तो इस नंबर के लिए हम क्या लिखेंगे? ये बेस है, दिस इज बेस। सो 6 होल 2/9 टू द पावर, ये क्यूब रूट है तो 1/3 लिखेंगे। ठीक, अब क्या करना है? चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1/3, आपको पता है कि पावर लॉ से ये 1/3 यहाँ आ जाएगा। 1/3 log 6 whole 2/9. This is a mixed fraction. We need to change this mixed fraction to improper fraction. 1/3 log 9 6 जा 54 to 56, 56/9। ठीक, अब आ जाइए आप इस रिजल्ट को देखिए जो आपको लाना है। वी हैव टू चेंज दिस टू दिस फॉर्म। ओके, डोंट वरी, वी विल डू इट। इसमें देख लीजिए क्या क्या है। 7 है, 2 है, 3 है, 2 है, सब यही है। 1/3 तो आ चुका है। सो जैसे पिछले क्वेश्चंस में मैंने किया, वी विल प्राइम फैक्टराइज 56 एंड 9। So 1/3 log 56 can be written as 2 into 2 into 2 into 7 upon 3 into 3। चलिए थोड़ा और चेंज करते हैं। क्या करें भाई? 1/3 log 2 into 2 into 2 को लिख देते हैं 2 क्यूब इंटू 7/3 स्क्वायर। अब मैं यहाँ, आप देखिए यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर आपके पास प्रोडक्ट है और डिवीज़न है। तो आप दोनों लॉ लगा करके, कौन सा लॉ? प्रोडक्ट लॉ एंड कोशेंट लॉ, इसको 3 लॉग्स में चेंज करेंगे। क्यों 3 लॉग्स में? क्योंकि न्यूमरेटर में 2 फैक्टर्स हैं, 2 क्यूब और 7, और डिनोमिनेटर में एक अकेला है, 3 स्क्वायर। तो हम इसको 3 लॉग्स में चेंज करेंगे। कैसे? 1/3 log 2 क्यूब
प्लस log 7 माइनस log 3 स्क्वायर log के तीनों रूल्स याद है ना? आई होप यू ऑल रिमेंबर, इफ नॉट चलो एक बार फिर से समझाता हूँ. log of a into b, it changes to log a plus log b. log of a by b, it changes to log a minus log b. log of a to the power m, it changes to m into log a. Okay, so now here we will be using power law, this one. So we can write it as 1 upon 3 times 3 log 2 plus, come here, log 7 minus, use here power law and write it as 2 log 3. Okay, now look at the result. What you want? What you want? We want to get this. What we have got? This. अब इसको उस फॉर्म में चेंज करना है. So log 7 2 log 3, log 7 यहाँ है, 2 log 3 यहाँ है, ये एक अलग है जो बाहर लिखा हुआ है. तो क्या करेंगे आप 1 upon 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, फिर 1 upon 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में लिख दीजिए जैसे यहाँ लिखा है. सो और 1 upon 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 log 2 प्लस, प्लस है तो प्लस लिखिए, फिर 1 upon 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 upon 3 का मल्टीप्लाई फिर दोनों में करिए. कैसे लिखेंगे? 1 upon 3 मल्टीप्लाइड बाई log 7 माइनस 2 log 3. क्या किया मैंने? फिर से ध्यान दीजिए, 1 upon 3 का मल्टीप्लाई इसमें यहाँ लिखा, फिर 1 upon 3 का मल्टीप्लाई दोनों में, तो दोनों में करना है तो ब्रैकेट में रख के आप लिखेंगे. यू विल राइट इट इन ब्रैकेट. सो 1 upon 3 and 3 cancel. So what do we get? Log 2, which we wanted, plus 1 upon 3 times log 7 minus 2 log 3, which is right hand side. Now sixth one, what do we have in sixth part? Log square of log a. आप कुछ लोग गलतफहमी में ये सोचते हो कि ये log of a स्क्वायर है. ना, ये log of a स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर ऑफ log है. ये log a इंटू log a का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. आप इसमें पावर लॉ नहीं लगा सकते. सम ऑफ यू यूज द पावर लॉ विच इज रॉन्ग. ओके, डोंट डू दैट. This is square of log a, which means log a multiplied by log a minus square of log b. We want to change this. We want to prove it equal to log of ab into log of a by b. So let's start with this side. Log of a whole square minus log of b whole square. So यहाँ पे पावर लॉ मत लगाइएगा, यहाँ पे लॉ ऑफ अलजेब्रा लगेगा. कौन सा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
equals to a plus b into a minus b. So using that law we can write it as log of a plus log of b into log of a minus log of b. ओके, यहाँ पे मैंने कौन सा लॉ लगाया? अलजेब्रा का। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द सम एंड द डिफरेंस, प्रोडक्ट ऑफ द सम एंड द डिफरेंस. सो प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ दिस टू, लॉग ए एंड लॉग बी यहाँ लिख लिया, डिफरेंस यहाँ लिख लिया. नाउ यू कैन यूज हियर कन्वर्स ऑफ प्रोडक्ट लॉ. क्या प्रोडक्ट लॉ का कन्वर्स कहता है? कि अगर लॉग्स का सम है तो वो एक सिंगल लॉग में बदल जाएगा, बट हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर्स को. सो ए और बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो वी विल राइट इट एज लॉग ऑफ ए बी, फिर इनटू ये सब्ट्रैक्शन ऑफ लॉग्स है तो ये भी सिंगल लॉग में बदल जाएगा, और इसको लिखेंगे लॉग ऑफ ए बाई बी. यही तो लाना था. राइट हैंड साइड प्रूव्ड. क्वेश्चन नंबर 5. What do we have in question 5? Solve. We have logarithmic equation. याद रखिए, लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है. एक, the logarithmic equation will be changed to exponential equation. दूसरा, in that logarithmic equation on both sides of the equation we will write the logarithmic terms with the same base. हम उस logarithmic equation के दोनों तरफ एक ही बेस वाले लॉग्स को लिखेंगे और उसके बाद लॉग को रिमूव कर देंगे. एक्चुअल कॉन्सेप्ट कहता है कि लॉग को रिमूव करने के लिए एंटी लॉग लीजिए, लेकिन हम लोग लिखते नहीं हैं. सिंपली हम लोग लॉग दोनों तरफ से हटा देते हैं. आई मीन अगर लॉग ए इक्वल्स टू लॉग बी है तो हम लोग सीधे लिख देते हैं ए इक्वल्स टू बी. क्या मैं बोल रहा हूं? लॉग ए इक्वल्स टू लॉग बी है. ये एक इक्वेशन है, लॉगरिथमिक इक्वेशन है, दोनों तरफ लॉग है तो आप लॉग हटा दीजिए. लेकिन कुछ लोग ऐसे करते हैं, लॉग लॉग कैंसिल. नो, ये तरीका लिखने का गलत है. यू कैनॉट यूज दीज सिंबल्स फॉर कैंसिलिंग द लॉग. क्या कहा मैंने? लॉग को हटाना है, और हटाने के लिए क्या लिखना चाहिए? टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ द साइड्स. आप नहीं लिखेंगे चलेगा, बट ये जो आप कैंसिल करते हो ये गलत तरीका है. इसके लिए एग्जामिनर के पास पूरा अधिकार है आपका नंबर कट करने का. एग्जामिनर हैज द फुल राइट टू डिडक्ट योर मार्क व्हेन यू यूज दिस टाइप ऑफ वर्क. तो क्या करना है? मैंने अभी क्या कहा? जब आपके पास सपोज लिखा है लॉग ऑफ, ओके, log of 9 to the base 3 equals to x, find x. तो एक तरीका क्या है? एक तरीका है कि आप अगर कर सकते हैं तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए. दैट इज द मोस्ट पॉपुलर वे. हाउ डू वी चेंज दिस टू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म? ये आपको मैंने पहले वीडियो में 7a एक्सरसाइज में सिखाया है. यहां पे बेस क्या है? 3 है. ठीक. सो 3 to the power x equals to 9. When you change this logarithmic equation to exponential, you will write it at 3 to the power x equals to 9. So इस तरीके से आप इस logarithmic equation को exponential equation में बदलेंगे. और exponential equation को कैसे सॉल्व करते हैं ये आपने क्लास 9th के फर्स्ट टर्म में पढ़ाई किया है. कैसे करते हैं?
जब एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होता है और उसमें आपको एक्सपोनेंट की वैल्यू लानी होती है, जैसे कि यहाँ है, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, पावर बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। जब आपको इंडेक्स की वैल्यू लानी होती है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में, तो दोनों तरफ सेम बेस होना चाहिए। सो हियर द बेस इज 3, देयर द बेस इज 9, सो वी कैन राइट दिस 9 एज द स्क्वायर ऑफ 3। तो दोनों तरफ जब सेम बेस होगा तो पावर को कंपेयर करते हैं, एंड दैट इज द वे टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x विच इज इन द पावर एट द प्लेस ऑफ द पावर। तो चलिए क्वेश्चन 5 में जो मैंने अभी ये सारी बातें बताई, लेट्स यूज एंड गेट द आंसर। अभी मैंने क्या कहा, जब आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है और आप चाहते हो कि उससे x आ जाए, तो दोनों तरफ सेम बेस करते हैं और पावर्स को कंपेयर करते हैं। जब लॉगरिथमिक इक्वेशन होता है तो आप उस लॉगरिथमिक इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में बदलते हो। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में बदलने के बाद दोनों तरफ बेस सेम करते हो, और बेस को सेम करने के बाद पावर्स को कंपेयर करते हो। चलिए हम ये तरीका लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट में। व्हाट इज दैट? लॉग ऑफ n टू द बेस 10 प्लस log of 5 to the base 10 equals to 1। अभी मैंने क्या आपको बताया कि ये एक इक्वेशन है, लॉगरिथमिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हमको बदलना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में, और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में बदलने के लिए ये जो कई सारे लॉग्स के टर्म्स हैं, उन सभी लॉग्स के टर्म को मिला करके हमको एक लॉग का टर्म बनाना होगा। तो चलिए करते हैं। दीज टू लॉग्स कैन बी चेंज टू अ सिंगल लॉग, बट फॉर दैट इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो वी विल राइट इट एज log n multiplied by 5 to the base 10 equals to 1। ठीक, व्हाट इज द बेस ऑफ दिस log? इस log का बेस क्या है? 10। सो वी कैन चेंज दिस log to exponential form with the base 10। 10 to the power 1 equals to 5n। और आप सबको पता है कि 10 to the power 1 is 10, so 10 equals to 5n, so n equals to 10 by 5, 2 answer। Second part, what is that? Log n minus log n to the base 3 minus log 4 to the base 3 equals to 2। एकदम इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। वी विल चेंज दिस टू अ सिंगल लॉग सिंस सब्ट्रैक्शन इज देयर। सो आपको पता है कि हम लोग कन्वर्स ऑफ कोसेंट लॉ लगाएंगे, जो कहता है कि अगर सब्ट्रैक्शन ऑफ लॉग्स है तो दैट विल चेंज टू डिवीजन ऑफ नंबर्स। सो वी विल राइट इट एज n upon 4। log will remain 3, sorry base will remain 3 equals to 2। अब ये सिंगल लॉग में चेंज हो गया। अब इस लॉगरिथमिक इक्वेशन को हम चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में। और कैसे चेंज करेंगे? लिखेंगे 3 to the power 2 equals to n by 4। 3 to the power 2 क्या होता है? 9 होता है। सो 9 equals to n by 4। डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ n। सो n equals to 9 into 4 which becomes 36। So here the value of n will be 36। Third part, what is third part? Log n to the base 6 minus log n minus 1 to the base 6 equals to log 3 to the base 6। ये दोनों लॉग को हम लोग सिंगल लॉग में बदल लेंगे। कैसे? बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ कोसेंट लॉ, n अपॉन n माइनस 1 टू द बेस 6 इक्वल्स टू log 3 टू द बेस 6। अभी मैंने कहा कि जब एक इक्वेशन लॉगरिथमिक इक्वेशन के दोनों तरफ लॉग्स हों तो हम लोग लॉग को हटा लेते हैं, या तो लिखते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ द साइड्स, या सिंपली हम लोग अगले स्टेप में लॉग दोनों तरफ से हटा देते हैं बिना कुछ लिखे। अगर लिखना है तो आप लिखिए रिमूविंग लॉग।
So we will get n upon n minus 1 equals to 3. n upon n minus 1 equals to 3. Do the cross multiplication. 3n minus 3 equals to n, 3n minus n equals to 3, 2n equals to 3, so n equals to 3 by 2, 1.5. So here the value of n will be either 3 by 2 or 1.5. Next one. Next part, 2 log x. 2 log x equals to 4 log 3. क्या करेंगे इसको? 2 log x. अब ये एक इक्वेशन है, इस 2 को यहाँ भेजेंगे, इस 4 को यहाँ भेजेंगे. So log x to the power 2 equals to log 3 to the power 4. दोनों तरफ से log हटाएंगे. So we will get x square equals to 3 to the power 4 is 3 into 3 into 3 into 3. So x square is equal to 81. So x is equal to square root 81, which is 9. And while finding the log of a number, if you get the value of x as negative number, so you ignore it, but because log of a number is not negative. Next one, question number 6. What is that? Simplify log 5 to the base 10 plus log 2 to the base 10. वेरी सिंपल. हमारे पास 2 लॉग्स हैं, उनको एक सिंगल लॉग बना लीजिए, बट उस सिंगल बनाने के लिए आपको नंबर्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या नंबर्स का डिवीजन करना पड़ेगा. मल्टीप्लाई कब करेंगे? जब हमारे पास दोनों नंबर्स के बीच में एडिशन हो, और डिवाइड कब करेंगे? जब हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो. सो वी विल राइट इट एज log 5 into 2 to the base 10 log 10 to the base 10, which is 1. क्योंकि log of a number to the same base is 1, so answer is 1 here. Second part, log 4 to the base 10 plus log 5 to the base 10 minus log 2 to the base 10. अभी आपके पास यहाँ कितने लॉग्स के टर्म्स हैं? 3 टर्म्स. यू हैव 3 टर्म्स ऑफ लॉग्स, जिसमें से कि एक नेगेटिव है. जो नेगेटिव लॉग है उसका जो नंबर है वो नंबर डिवीजन में चला जाएगा और बाकी सब नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे. सो वी विल राइट इट एज log 4 into 5 upon 2 to the base 10. 4 into 5, ये इसको पहले कैंसिल करा लीजिए. सो यू विल गेट log 10 to the base 10, which is 1. Now the last part of this question, this exercise, third one, 2 log 5 to the base 10 plus log 8 to the base 10 minus half log 4 to the base 10. अब इसको क्या है? यहाँ पे भी 3 लॉग्स हैं, लेकिन इन सभी लॉग्स के सामने कुछ यहाँ देखिए 2 लिखा हुआ है. तो आप ये वाला लॉ अभी तुरंत नहीं लगा सकते कि इसको मल्टीप्लाई कर लें. व्हाट विल यू डू? यू विल फर्स्ट रिमूव दिस 2. अब ये 2 कहाँ जाएगा? कैसे हटेगा? ये 2 यहाँ पावर में बन के जाएगा. उसी तरीके से ये हाफ, केवल हाफ, डोंट टेक माइनस, ये हाफ यहाँ पावर में जाएगा. आप कैसे लिखोगे इसको? log 5 स्क्वायर प्लस log 8 फिर माइनस log 4 to the power 1 by 2 to the base 10 to the base 10 to the base 10. अब इसके बाद क्या करोगे? अगर आप चाहो तो इस तीनों को अभी यहीं पे एक सिंगल लॉग में लिख लो, या पहले इसकी वैल्यू लिख लो. 5 स्क्वायर log 25 log 8 और 4 to the power half. 4 to the power half means square root of 4, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 आप सभी लोग जानते हो. 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है. तो ये हो गया
log 2 to the base 10। अब आप इसको एक सिंगल लॉग में बदल लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, इसका मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड। सो 25 इंटू 8 अपॉन 2 बेस 10, 2 4 जा 8, तो आपको क्या मिला? 25 4 जा 100, आपको मिला log ऑफ 100 टू द बेस 10। अब आप सोचोगे कि ये आंसर हो गया, नहीं, आप थोड़ा सा इसको चेंज करो। आप इस 100 को लिख सकते हो 10 स्क्वायर। सो log ऑफ 10 स्क्वायर टू द बेस 10, यहीं पे ध्यान रखना है, ये पावर लॉ से फिर 2 आ गया सामने, 2 log 10 टू द बेस 10 एंड log ऑफ ए नंबर टू द सेम बेस, अभी मैंने यहाँ लिखा है, क्या होता है? 1 होता है। सो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। सो हियर आंसर इज 2। सो आज मैंने सारे क्वेश्चंस आपके 7B के कर दिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो and keep practicing in every video. I request you, my dear students, if you are a student of mathematics and watching my video, if you are the viewer of my channel, it's my humble request to you, practice is very important thing in mathematics. You watch, you listen, but when you don't practice, you can't learn. Just by watching and listening you can't learn mathematics. केवल देखने और सुनने से मैथमेटिक्स नहीं सीखा जा सकता, मैथमेटिक्स को अभ्यास करना होता है, once twice thrice। ओके, सो आई होप आज के बाद से आप मेरी बातों को मानेंगे। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।